Test, testing. Okay. Please keep your seats. Very special session. Raman Bhai, Soendra, Gulam, please come on stage. Welcome, friends. Very special session of the Goa Arts and Literature Festival. So pleased about this. That's what you know. Okay. Very special session. I'm very pleased to have with us today Rahman Abbas, who's a wonderful, wonderful writer of India. His novel Rosin in Urdu is available in translation, is I think a kind of contemporary masterpiece. And today he's written a very the book that we are launching and we're going to be discussing. It actually, it's not a exclusive launch as such because it was launched in Lahore. The book was released in Lahore in a way. Oh, Sindh, in Sindh. And it is a Urdu novel. One of the great things about the Konkan and the Malabar, we were talking about how the rest of the world often talks to us about Vasudhaiva Kutumbakam, but actually the Konkan and the Malabar has a lot to offer the world in this regard. And Konkani, as we know, is the only language in the world in daily use in 5 different scripts, scripts which can be read by some 40 to 50% of the world can read these scripts and can understand the language, understand what is said in them, but the language is Konkani and the meaning is one. Today, Rahman Bhai is launching a wonderful book which is about the Konkan, and it is about our milieu, and it is about the what has happened, what is happening, and what is about to happen, and a very precious time in the Konkani world. Congratulations and thank you for being here. Rahman's going to be in conversation with Gulam Ansari, who is a Mapsekar and a fine scholar of Goa. He is a PhD student. And I am especially pleased that we have one of our favorites here at the Goa Arts and Literature Festival and a national treasure, Dr. Hansda Soendra Shekhar, one of the finest writers of India. I highly urge you. We have had the pleasure of launching his first important book here. It's available outside. I urge you to please pay attention to Dr. Shekhar's writing in the future. Follow him closely. And he is going to be in conversation with Manoj Rupta about a wonderful book which he has translated from the Hindi, which riveted us last year with one of the best sessions when he read out a long session, so in this same hall. So congratulations to all, and a big warm welcome, and let's launch the book. A big hand. Rajiv, they would like you to come as well. Please. This is Rahman. Request to you. Please come. Okay. No, take this one. Yeah, right there. You take it. Two of them are the book upside down. You can see who the two are. Okay. That was the first place. Okay, he had it right. Okay. Upside down, Jerry. It's upside down. Okay. Now you come with us. No. You got the picture? No. Not your picture, it is not incomplete. Yeah. Come, Jerry, come. With Vivek. Okay, now it's the official photo. Thank you. Guys, good night. We will end bang on time. Yeah.
Hello everyone, thank you for coming. I am very happy to introduce Mr. Rahman Abbas, who is first of all a friend, and after that he is a novelist writing in Urdu. The author of the novels Nakhalistan Ki Talash, which was published in the year 2004, Ek Mamnua Mohabbat Ki Kahani, published in 2009, Khuda Ke Saaye Mein Aankh Micholi, which came in 2011, Rohzeen, published in 2016, Zindik, published in the year 2021, and Ek Tarah Ka Pagalpan, the book here, which was published in 2023. Rohzeen won the Sahitya Akademi Puraskar in the year 2018 for Urdu, and the English translation of Rohzeen, which was by Sabika Abbas Naqvi, it was longlisted for the 2022 JCB Prize for Literature. Rohzeen has also been translated into Hindi by Muhammad Rizwan Ansari, and in German by Almat Degner, and the German translation received the Lit.Prom grant. These are some of the positive aspects of the literary life of Rahman Abbas, but there have also been certain accusations and trials and tribulations which he went through, and which maybe we'll discuss in this conversation. And in conversation with Rahman Abbas is Ghulam Ansari, who hails from Gaya in Bihar, but who grew up in Mapusa, Goa, here. And he is currently pursuing a PhD in economics from the BITS Pilani Goa campus. And Ghulam Ansari, he writes in Hindi, and his works have been published in Hans, Kathakram, Vagarth, and other places. So without further ado, I think we should move on to this session. And this session will be in Hindi. If required, we can translate it into English. And how much time will be talking for? 20 minutes? Okay. So we'll take care to keep the last 10 minutes for an audience Q&A. So, Ghulam. Thank you, Hansda. आदाब नमस्कार. नॉवल पढ़ने के बाद जो गालिब का एक शेर मेरे जहन में कौंध गया, बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना. तो इंसान जब शदीद पागलपन का शिकार होता है तो इंसान नहीं रह पाता. रहमान साहब, इस नावल की शुरुआत 2009 में हुई, एक ममनुआ मोहब्बत की कहानी. फिर इसके और भी एडिशंस आए, और पिछले साल रेख्ता फाउंडेशन द्वारा इसका नए सिरे से पब्लिकेशन हुआ. तो मैं जानना चाहूँगा कि ये नावल लिखने का प्रोसेस कैसा रहा, क्या ज़रूरत पड़ी कि इसको आप नए सिरे से पाठकों के सामने लाए, और क्या चेंजेस आपने इस नावल में किए? शुक्रिया हंसदा. हुआ ये कि 2004 में जब मेरा पहला नावल पब्लिश हुआ तो जो मुस्लिम सेंसिबिलिटी जिसको हम कहते हैं वो बहुत नाराज़ हुई. एंड आरिफ नसीम खान वाज देन मिनिस्टर इन महाराष्ट्र, who was representing Muslim sensibilities and Maulanas. So, and R.R. Patil was Home Minister. So, BJP and शिवसेना के MLAs ने भी असेंबली में इस नावल पर ऑब्जेक्शन रेज किया था. एंड कंसिक्वेंसली उसका नतीजा ये हुआ कि मुझे रिज़ाइन करना पड़ा फ्रॉम माई जॉब, एंड आई वाज जॉबलेस. एंड उससे भी कुछ नहीं हुआ तो फिर FIR दर्ज हुआ, एंड आई वाज इन अर्थर रोड जेल फॉर गुड 2 days. जेल में मुझे ऐसा लगा कि राइटिंग बहुत चैलेंजिंग जॉब है, एंड यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज. और तब मैंने सोचा कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है मेरे साथ. क्या एक किताब जो बहुत यानी मुख्तसर सी किताब थी, छोटी सी किताब थी, बमुश्किल 100 pages, and those 100 pages can trigger all these people to be against an author. So that day I realized कि writing can do something. तो मुझे फील हुआ कि ये सारे लोग जो मेरे खिलाफ हैं, एंड द होल उर्दू मीडिया यू कैन से, बहुत लिखा हमारे बारे में, बहुत खिलाफ लिखा हमारे खिलाफ. एट दैट टाइम आई वाज आल्सो डूइंग माय मास्टर्स इन इंग्लिश, तो मैंने थोड़ा सा अंग्रेजी लिटरेचर भी पढ़ रखा था. तो वहाँ जो आज़ादी थी वही उसी आज़ादी का हमने इस्तेमाल किया था. अब ये तो मुमकिन नहीं है कि मैं अगर आप बोसा ले रहे हैं किसी का
तो मैं ये लिखूं कि हम हज करने जा रहे हैं। दिस आर टू डिफरेंट थिंग्स। लेकिन खैर कुछ चीजें वो गवारा नहीं थी, तो देन मुझे उसका अंदाजा हुआ कि ये सारा जो मुस्लिम सोसाइटी के अंदर ये जो नैरोनेस आई है ये कहां से आई है। एंड टू सर्च दैट आई रोट द अदर नॉवेल आफ्टर कमिंग फ्रॉम द जेल। आइडिया वही ख्याल मेरे जहन में आया था, और उसी रात मुझे मंटो की बहुत याद आई थी, जिस पर पहले इसी तरह के 5-6 केसेस हो चुके थे। तो उस पर मैंने उसके बाद मैंने एक आर्टिकल मंटो पे लिखा, मंटो की अजियत का एहसास, और उसके बाद ये नॉवल लिखना शुरू किया। ये नॉवल 2009 में छपा, और इसके साथ फिर ट्रेजेडी हुई कि हमारे उर्दू वाले इससे नाराज हो गए। इस बार तो मौलाना नाराज नहीं हुआ, लेकिन जो उर्दू के कल्ट फिगर्स थे, जो मेरे सीनियर्स थे, वो नाराज हो गए। एंड द रीजन इज दैट दिस नॉवल इज नॉट इन फेवर ऑफ उर्दू। दिस नॉवल कंसिडर उर्दू एज एन इन्वेजन ऑन कोकनी कल्चर। तो मेरी जो आइडेंटिटी है, यानी माझी जी कोकणी है, यानी चिपळूण वाली जी कोकणी बोलतो ती माझी मातृभाषा आहे, मराठीचा तिच्यावर असर आहे, आणि माझी आईस माझो बापूस आम्ही घरात तीच कोकणी बोलतो। आता ती कोकणी बोली आहे, तिची लिपी नाही, पण ती मला एवढी अजीज आहे आणि मला एवढी प्यारी आहे, मी तिच्यासाठी आपला जीव देऊ शकतो, आपली जान दे शकतो। तर उर्दू किती पण गोड असली आणि उर्दूची किती पण मिठास असली, किती पण गोड असू दे, उर्दू आपल्या जागावर, पण माझी माय बोली है ती माझी है। सो दैट वाज, ये जो नॉवेल का प्रोटैगनिस्ट है वो मराठी मीडियम से पढ़ा हुआ है, और वो उर्दू को भी अलॉन्ग विद मेनी अदर थिंग्स, जो आइडिया जो उर्दू के साथ कोकन में आए हैं इन अर्ली 70s, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो उर्दू वालों को भी ये नॉवेल नागवार गुजरा था, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ किया नहीं। 2-3 राइटर्स ने, उनमें से एक का नाम तो मैं ले सकता हूं, अनवर कमर वॉज अ वेरी सीनियर फिक्शन राइटर। उन्होंने तो एक कोशिश किया था कि एक कैंपेन करेंगे। उन्होंने हमारे नॉवेल तो दूसरी कॉपीज नहीं खरीदी, उसी को जेरोक्स किया था और तकसीम किया था टू प्रोक सम पॉलिटिशियंस एंड अदर, बट वो ऑलरेडी उनको पता था कि मेरा एक केस चल ही रहा है, तो उन्होंने दोबारा दूसरा केस नहीं किया। But then the thing is that ये the hardcore मुसलमान है, उसको मैं I will advise not to read। नहीं, वो पढ़ के चुप नहीं बैठेगा, he will try to do something, you know। तो वो रीजन था। और अब जब पाकिस्तान में ऑफर आया इसके पब्लिकेशन का, मैं 2 नॉवेल हैव ऑलरेडी पब्लिश, तो दे वांटेड टू पब्लिश दिस, सो आई सेड कि लेट मी रिवाइज इट, एंड आई रियलाइज कि मैंने कुछ गलतियां की थी पहले ड्राफ्ट में। एज ए राइटर यू इवॉल्व विद द टाइम एंड यू रियलाइज दैट यू हैव committed certain mistakes। Political narrative जो था वो राइटर की तरफ से टेक्स्ट में नहीं आना चाहिए था in my earlier draft। It should have been come from the protagonist point of view, not from the writer's narrative point of view। तो उसको मैंने थोड़ा सा कम किया। और कोकनी के जो शब्द थे, आता इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं कोकनी नॉवेल लिखूं कोकन के बारे में, और वो पूरा कोकन ही है फ्रॉम 70 to 90 तक। तो अभी हमारे घर के ऐसे लग की जो दीवार है, उसको हम दीवार नहीं कह सकते। अगर आप उसके लिए दीवार का शब्द इस्तेमाल करेंगे उर्दू में या हिंदी में, तो गलती होगी। क्या हम उसको गड़गा कहते हैं ना, गड़गा इस पत्थर पर पत्थर रखे हुए हैं, सिर्फ जो पुराने कोकन के घर है वो पता है। अभी पड़ी है, अभी किचन जो है हमारा वो पड़ी है, और उसको किचन कह के नहीं चलेगा, उसके लिए पड़ी का शब्द ही लगेगा। इस तरह जो कोर कोकनी हमारे अल्फाज थे, तो मैंने सोचा पाकिस्तानियों को तो ये और प्रॉब्लम हो जाएगा वहां उर्दू पढ़ने वालों को, तो मैंने उन लफ्जों के साथ उसका एक्सप्लेनेशन दिया है थोड़ा, कि हमारे कोकन के घरों में इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, वटेदार है, मंगिलदार है, माल पर चढ़ने वाले के लिए अलग शब्द है। तो वो जो बेसिक कोकनी शब्द थे उसका मैंने एक्सप्लेनेशन किया है। इस तरह से ये एक और थोड़ा नरेटिव भी कहीं कहीं चेंज किया है, और इस तरह एक इस नवंबर में ये छपा है नॉवेल, दोनों इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। बहुत खूब। मोहब्बत पागलपन का सबसे संजीदा शक्ल है, ये इनके शब्द हैं। मोहब्बत से लोगों को बहुत परेशानी होती है रहमान साहब, क्योंकि मोहब्बत करने वाले ज़्यादा करके हम देखते हैं कि समाज ने जो स्टेटस को तय किए हैं उसको चैलेंज करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उर्दू फिक्शन राइटिंग के हवाले से आप हमें बताने की कोशिश करिए कि मोहब्बत करने में दुश्वारियाँ हैं, ये तो हम जानते हैं, पर मोहब्बत जैसे संजीदा मौजू पर लिखना कितना मुश्किल हो जाता है। आपने कई बार इस बात का जिक्र भी किया है कि आप कहते हैं कि मेरे जहन में कोई भी
उर्दू का बड़ा राइटर नहीं आता जिसने मोहब्बत जैसे संजीदा मौजू पर गंभीरता से कोई नॉवल लिखी हो। तो इस पर आप रोशनी डालिए और आप ये बताने की कोशिश करिए कि इस कमी को, इस खामी को कैसे आपकी नॉवल पूरा कर रही है। लुक, आप एक भाषा में लिखते हैं, इट कैन बी कोंकणी, उर्दू, मलयालम, तमिल, लेकिन सारी दुनिया का जो साहित्य है, यू हैव टू रीड दैट। और जब आप उसको पढ़ते हैं तो आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेल्स आते हैं, यू नो, फॉर एग्जाम्पल एना कारेनिना, मदाम बुवारी, लव इन द टाइम्स ऑफ कोलेरा। तो ये वो नॉवेल है जो लव स्टोरीज को अपने तौर पर, शानदार तौर पर बयान करते हैं। इन कंपैरिजन टू ऑल दिस नॉवेल्स, आई मीन, उर्दू की हिस्ट्री तो बहुत छोटी है, इट्स 110 ईयर्स और 125 ईयर्स। एंड उर्दू में जो नॉवेल लिखना शुरू हुए हैं, दोज वर कॉपी पेस्ट फ्रॉम दैट टाइम अवेलेबल इंग्लिश सोर्सेस। सो इंग्लिश में अच्छा, फिर डिप्टी नजीर और इन लोगों ने जिन्होंने अर्ली स्टेज ऑफ उर्दू नॉवेल जो नॉवेल लिखे हैं, वो काफी ऑब्जेक्शनेबल है फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, बट फ्रॉम देयर एज, देयर टाइम, दे माइट हैव फेल्ड इट wonderful to write. It's all about how to tell their girls and daughters to be good at your husband's place. It's nonsense almost. कि कैसे आपको अच्छा बन के रहना है, कैसे शौहर की खिदमत करनी है, कैसे खाना बनाना है, how you should be known as a really good बहू। And ये इस मुल्क का अजीब आदमी है जो अपनी बेटी के साथ यही उम्मीदें रखता है कि उसकी बेटी अच्छी बहू कैसे बनेगी। सो ये एक प्रॉब्लम मेरा ख्याल है कि हमारा पूरा एक हर तरह के समाज में भारत में पाया जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि उर्दू में लव स्टोरीज की शुरुआत ही नहीं हुई सिवाय उमराव जान अदा के, बट दैट्स अ स्टोरी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन रादर देन लव। उसके बाद प्रोग्रेसिव मूवमेंट का पूरा एक फेज आता है, एंड ऑल प्रोग्रेसिव राइटर्स लाइक मार्क्सिस्ट एंड कम्युनिस्ट एंड कॉमरेड्स, दे वर ऑल बिजी इन चेंजिंग सोसाइटी, सो दे हैड नो टाइम टू लव। अब जिन्होंने साहिर, मजरू, जिन्होंने फिल्मों के लिए नगमे लिखे, वो पैसे के लिए लिखे। अब साहिर की मोहब्बत का क्या हुआ था, अमृता प्रेम से पूछ लीजिए। मजरू साहब तो बड़े वजाकता के आदमी थे, शायर थे। तो इस्मत को आपने देखा, इस्मत ने भी सोशल नॉवेल तो लिखा है, टेढ़ी लकीर, लेकिन रोमांस नहीं है उस तरह से। अब मेरे एज तक आते आते जिन लोगों ने, 2-4 लोगों ने लिखा भी है, तो उनके यहां प्रॉब्लम ये होता है कि आप लिखते हुए अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी पंडित, मौलवी या पादरी बचा है, तो वो रोमांस अच्छा नहीं लिख सकता, क्योंकि फिर आप पर्दा ले आएंगे, बुर्का ले आएंगे, वो सारी चीजें ले आएंगे, तो रोमांस लिखने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ आदमी रहना पड़ेगा या औरत रहना पड़ेगा, द कोर आइडेंटिटी ऑफ योर बीइंग। So until or unless you are not identify yourself as a human being, जो एक दूसरे इंसान से या गैर इंसान से, you can also love dolls और उसका अल्टरनेट से मोहब्बत कर सकते हैं। मोहब्बत के लिए मतलब मुझे नहीं लगता कि मोहब्बत के लिए किसी एक तरह का कोई चीज हम तय कर सकते हैं। तो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि उर्दू में कम से कम देयर इज नॉट अ सिंगल नॉवेल विच इज सीरियस एट द सेम टाइम और किसी बहुत बड़े लेखक ने लिखा हो। और जो छोटे राइटर्स हैं, मुझे लगता है उन्होंने भी अच्छा नॉवेल नहीं लिखा, क्योंकि अगर वो अच्छा लिखते तो वो छोटे राइटर क्यों कहलाते हैं। So I mean, at least I mean that's a very serious point. I mean, if I see 100 years of Urdu fiction, there is not a novel about love. और ये प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि उर्दू के बाहर दूसरी भाषाओं में होना चाहिए, लेकिन उर्दू में तो ये प्रॉब्लम हुआ है कि वी डोंट हैव नॉवेल्स ऑफ लव। और ये नॉवेल कमी पूरी करेगा या इससे पहले जो मेरा नॉवेल रूज़ी ने, मुझे नहीं पता। किताब की अपनी डेस्टिनी होती है, किताब की अपनी किस्मत होती है, राइटर के चाहने से कुछ नहीं होता है। If a book is good, it will create its own place in literature. If a book is not good, आप पूरी दुनिया को लेकर उसके साथ पब्लिसिटी का कैंपेन करो, book will not survive. Book can survive only on its own merits. So ये जो मैंने 2 नॉवेल मोहब्बत पर लिखे हैं, उस पर उसकी किस्मत मुझे नहीं पता। Time will decide whether it survives or not. रहमान साहब, धर्म, जात और पात को लेकर तो हमारे समाज में कई अरसे से देखा जा रहा है कि दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, कत्लो गारतगरी हो रही है। आपने भी इस नावल में के शुरुआत ही की है मोहनजोदाड़ो सभ्यता को लेकर, जिसमें आपने बताया है कि किस तरह से
कत्लो-गारतगरी हो रही है, और आप ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने 1000 साल बीत गए फिर भी एक तरह का पागलपन, वैशी क्या कहते हैं मानसिकता अब भी हम पर हावी है। तो ये पूरा कालक्रम, ये पूरी क्रोनोलॉजी समझना कितना ज़रूरी हो जाता है, खासकर ऐसे दौर पे जब कुछ लोग ये नैरेटिव्स डेवलप करते हैं कि एक विशेष तबका समाज का खतरे में है। हिंदू समझते हैं कि हिंदू का वजूद खतरे में है, मुसलमान का मानना यह है कि उनका मुस्तकबिल खतरे में है, जबकि सच तो यह है कि कोई विशेष समुदाय खतरे में नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता, हमारी सांस्कृतिक धरोहर खतरे में है। और ये खतरा बाहरी ताकतों की वजह से नहीं, बल्कि ये खतरा इसलिए है क्योंकि हम ये बात भूल रहे कि हम कौन हैं। तो इस पर आप कुछ रोशनी डालिए। ये जो नया ड्राफ्ट है इसका, दिस स्टार्ट्स विद द सिंध सिविलाइजेशन, तो उसका एक 2 मिनट का प्यारा मैं पढ़ता हूं एंड देन आई विल डिस्कस अबाउट इट। ये वो दिन थे जब हर तरफ अफरा तफरी और दहशत फैली हुई थी। मोहनजोदारो, हरिपोया, मेहरगढ़ वगैरह में खौफ का माहौल था। अचानक घात लगाकर हमला किया जाता। हमलावर मकामी नहीं थे। उनका कद लंबा और जिल्द जर्द मायल थी। आंखों के बारे में कहा जाता था कि नीली सुरमई और सब्ज मायल हैं। उनके पास अपनी जबान, अपना तर्ज जिंदगी, अपने हथियार और अपना खुदा था। हमलावर कौम की खुशगुमानी थी कि वो महज़िब है यानी सिविलाइज्ड है, और गुमराह दुनिया में तहजीब का अहिया उसका फरीजा है, यानी दे वांट टू चेंज द प्रीवियस वर्ल्ड और दे वांट टू इवॉल्व द सिविलाइजेशन। वादी सिंध की तहजीब इन हमलावरों के लिए कुफ्र और इल्हाद की तहजीब थी, जिसका खात्मा उनके खुदा की खुशनुदी और आदमी की बहबूदी के लिए ज़रूरी था। सो दिस गोज फ्रॉम द ऑल सिंध सिविलाइजेशन। पर जो आर्यंस या आर्यंस की तरह दिखने वाले लोगों ने जो पहले पहले हमले किए थे, वहाँ से एक जोड़ा फरार होता है, जिसको कामरुद जो एक गांव है सिंध में, वहाँ से उस गांव वालों ने निकाल दिया है। तो वो पनाह ढूंढता ढूंढता गुजरात तक आता, और गुजरात का एक हिस्सा भी जो है वो इट वाज अ पार्ट ऑफ सिंध सिविलाइजेशन। तो वहां तक आता है तो उनको कोई पनाह नहीं देता है, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि ये किसी और क्लास का होगा या ये जासूसी करेगा आर्यंस के लिए, तो वो उनको पनाह नहीं देते हैं। तो वो नर्मदा और दूसरी नदियां पार करके एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर घने जंगल और बारिश उनका स्वागत करती है, एंड दैट इज कोंकण। और फिर ये यहाँ पर रहते हैं, एंड द स्टोरी स्टार्ट विद द कोंकण। लेकिन अब तो तुमने सवाल किया, उसकी तरफ आते हैं। आई मीन और उसको मुझे लगता है कि जनरलाइज नहीं करते हैं हम, उसको कोंकण सेंट्रिक करके बात करते हैं। देखिए आज का जो भारत का समाज है, इस पर कल काफ़ी डिटेल में बात की है सर ने अपने स्पीच में। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बात करूंगा कि मुस्लिम समाज के अंदर क्या प्रॉब्लम हुआ है। मेजोरिटेरियन जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो आपको पता है, सबको पता है। लेकिन मेरा नॉवल डिस्कस करता है माइनॉरिटी, स्पेशली कोंकणी माइनॉरिटी का जो इशू हुआ है इस नॉवल के साथ। 70 से पहले हमारे यहाँ कोई रिलीजियस ग्रुप नहीं था कोंकण के अंदर। 75 के बाद तबलीग जमात has entered into Konkan as they spread their version of Islam. अभी तबलीग जमात का जो इस्लाम का वर्जन है, I can criticize that version, I am not criticizing Islam. किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो नैरेटिव होता है धर्म के बारे में, you can criticize that, you are not criticizing धर्म actually. हर आदमी फ्री है तो एक आस्था रखने के लिए, आस्था नहीं होगी तो आदमी सुसाइड कर लेगा। आदमी अभी इतना मजबूत जानवर नहीं हुआ है कि वो बगैर आस्था के इस प्लानेट पे जी सके। सहारा चाहिए, और सहारे के लिए खुदा चाहिए। और ये खुद इंसान, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इंसान ने ही ये सहारा खुद बनाया है, जब उसने इस प्लानेट पर और अंधेरे में अपने आप को अकेला महसूस किया। तो कोई तो उसको चाहिए जो उसके पास नहीं है लेकिन उसका है, उसको देखता है। तो तबलीग जमात का जो वर्जन है वो काफ़ी ख़राब वर्जन है। इट्स वेरी बैड वर्जन ऑफ इस्लाम, और बहुत ही नैरो वर्जन है। और इस वर्जन की वजह से कोंकण का जो मुसलमान था वो जितना ग्रोथ कर सकता था, मुझे लगता है कि वो नहीं कर पाया है।
ये वर्जन एक तो इक्वालिटी पर बेस्ड नहीं है, ये औरतों के ताल्लुक से और औरतों की जो आज़ादी है उसको कंप्लीटली कर्ब करता है। उनको तालीम, ये तो प्योरली एजुकेशन के भी खिलाफ है। वो भले ही उनके स्पीचेस में कुछ कहते हो, लेकिन मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि वो एजुकेशन के भी खिलाफ है। मैंने उनको ये बोलते हुए सुना है कि तालीम हासिल करके भी क्या करोगे, तुम्हें थोड़े दिनों बाद मरना है और अपना जो कुछ तुमने यहाँ किया है उसका जवाब देना है। और वो बड़ी फख्र से कहते हैं कि हम अपने मीटिंग्स में ज़मीन के नीचे और आसमान के ऊपर की बातें करते हैं, वी डोंट टॉक अबाउट दुनिया। तो दुनिया में से रिलेट ही खुद को नहीं करते हैं, दे विल डेफिनेटली डिस्ट्रॉय यू विद देयर नोशन ऑफ जमीन के नीचे और आसमान के ऊपर। वो इस प्लैनेट पर रहना ही नहीं चाहते। तो मुझे लगता है तबलीग जमात इज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस फॉर कोकन का मुसलमान उसकी वजह से एक बड़ा सर्कल तरक्की से, एजुकेशन से उतना उभर नहीं सका, उसमें चांसेस नहीं मिल सके उसको। काफ़ी नैरोनेस आई है। 70 से पहले मैंने कोकन में एक भी औरत को बुर्का पहने हुए नहीं देखा था इन आर पार्ट ऑफ कोकन। 80 के बाद आप मार्केट में, व्हाट नॉवेल ऑब्जर्व्स, 80 के बाद आप मार्केट में जाते हैं तो मुसलमान को आप आइडेंटिफाई करते हैं, सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहना है, दाढ़ी रखी है, किसी ने कम रखी है, किसी ने ज़्यादा रखी है, और टोपी पहना हुआ है, अलग सा एक हुलिया बना लिया अपना रिलीजन को एक्सप्रेस करने का। मुझे लगता है कि ये पूरा प्रॉब्लमेटिक है और इसकी वजह से समाज में एक तरह से वो नजर आता है, गैप नजर आता है। पहले जो सब कोकन का समाज था उसमें पता ही नहीं चलता था कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन आदिवासी, कौन दलित, सब एक जैसे रहते थे। वो आपने यू वांट टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ, तो ये कहीं ना कहीं कल्चर को अफेक्ट किया, हमारी बोली को तो अफेक्ट किया ही किया है। और जिस तरह से उर्दू स्कूलों का जाल बिछा है, अभी उर्दू स्कूल पढ़ना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम यू कांट हेट कोकनी, यू कांट डिसलाइक कोकनी। आप बच्चों को पनिश नहीं कर सकते हो कि अगर वो स्कूल में कोकनी बोलेगा तो आप उसको पनिश करोगे। आई मीन ये सब भी हुआ है। तो उर्दू भी प्रॉब्लम है, हिंदी भी प्रॉब्लम है, और इनके साथ जो इनके ईश्वर का जो वर्जन आया है कोकन के लिए, मुझे लगता है दैट विल डेफिनेटली दैट्स गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर कोकनी सोसाइटीज, एंड दैट वाज द वेरी सीरियस कंसर्न ऑफ दिस नॉवेल। और वो नॉवेल इसको एड्रेस करता है पूरे थरोली, कोकन कल्चर, कोकन की हर एक चीज जो हमारी चीजें थी उसमें। एक और प्रॉब्लम ये हुआ कि 70s में ये सब कुछ होने के साथ साथ अर्ली 70s से कोकनी आदमी और इवन गोवानीज भी जॉब करने के लिए गल्फ में गए। आई वॉज इन लेट 90s, आई वॉज इन बहरीन, तो काफी गोवानीज कोकनी के साथ हमने काम किया है। अब गोवा का जो गया है गल्फ के लिए, वो आते हुए मिठाई लेकर आएगा अपने बच्चों के लिए, कपड़े लेकर आएगा, खिलौने लेकर आएगा, बादाम, पिस्ता, साबुन भी लाते थे। मुसलमान इन सब के साथ अरबों का कल्चर भी लेके आता है, एंड दैट्स अनदर प्रॉब्लम। वो तस्बीह लाएगा बाप के लिए, मुसल्ला लाएगा मां के लिए नमाज पढ़ने के लिए, और बेटी के लिए जो है ना बुर्का लाएगा, और बीवी के लिए। और सिर्फ लाएगा नहीं, पहनाएगा, और पहनाएगा भी नहीं, लेके साथ में चलेगा और गांव को बताएगा नया बुर्का ऐसा होता है। अभी इसमें हर एक को आजादी है, स्कार्फ पहनने की आजादी है, बुर्का पहनने की आजादी है, नहीं पहनने की भी आजादी है। मुझे लगता है कि औरतों को चॉइस नहीं मिला है, दे हैव नॉट गिवन फ्रीडम टू डिसाइड, एंड एन इलिटरेट वुमन इज नॉट फ्रीडम। जब तक उसको एजुकेशन नहीं मिलेगा, एंड आई डोंट मीन एजुकेशन से मतलब 10वीं पास हुई, आई मीन हायर एजुकेशन, जब वो बहुत क्वालिफाइड ना हो। एक बहुत ही सुशिक्षित तालीम याफ्ता औरत जब तक हम अपनी बेटी को नहीं बनाएंगे, वी कांट से दैट शी इज हैविंग फ्रीडम और नॉट। तब तो वो सोच पाएगी उसके हक में अच्छा क्या है, द सोसाइटी इन विच शी इज वर्किंग, उसमें उसको अपना रहना, सहना, पहनना क्या तय करना है। मेरा ख्याल है कि कोकन के मुसलमान मर्दों ने मजहब के नाम पर अपनी बेटियों और बीवियों को ये आज़ादी नहीं दी है, उनसे छीन ली है, क्योंकि आपने अभी तक उनको बहुत अच्छा एजुकेशन नहीं दिया। और सडनली जो आपको अरबों का अच्छा लगा, वो अपने घर पर आपने सोचा भी नहीं कि कल्चर आपका कैसा है। माई मदर वॉज वर्किंग इन चावल के खेतों में काम करती थी, घुटने घुटनों तक चावल में काम करना पड़ता है। जिन्होंने चावल के खेतों में काम किया उनको कैसे बुर्का पहन के करेगी? इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। मेरी मां फनस के पेड़ पे चढ़ रही, कैसे बुर्का पहन के चढ़ेगी?
तो जिनके यहां बुर्का है उनको उसकी जरूरत है, उनके कल्चर का हिस्सा है। इवन आप भी सऊदी अरब में जाके रहेंगे तो आप सोचेंगे कि मैं वही गुड फॉर देयर वेदर एंड डस्ट, लेकिन यहां का कल्चर, यहां के जंगल, मेरी मां 3 किलोमीटर पानी भरने जा रही है, पहाड़ी पे से उतर रही है और एक कुएं से पानी निकाल के ला रही है। इज इट पॉसिबल इन बुर्का? सो कल्चर होता है लिबास का। तो वो सारी चीजें एड्रेस नहीं किए बगैर हमने अपनी औरतों को कैद करने की कोशिश की है। एक सबने नहीं, लेकिन एक सर्कल ने, जो बड़ा नजर आता है साफ साफ। ये सारे कंसर्न जो रिलेटेड टू कोकन है, आई थॉट बेटर टू एड्रेस थ्रू नॉवेल, और इसलिए ये नॉवेल में मैंने उन सारी चीजों को डिस्कस किया है। जी, आपने जहाँ से बात ख़त्म की है मैं वहीं से उठाना चाहूँगा। आपने जिक्र किया तबलीगी जमात का, और आपके नावल में एक कैरेक्टर है यूसुफ, जो बहुत ही पढ़ा लिखा है, आलिम है, हाफिज़े कुरान है, मुफ्ती तक है, और उसका काम है कि फतवे देना। और अंत में यूसुफ इस नावल के मुख्य किरदार का खून कर देता है, जो है अब्दुल अजीज़। अब्दुल अजीज़ का कैरेक्टर ऐसा है कि वो समाज के बदलते ताने बाने से परेशान हो चुका है, जो सरोकार बदल रहे हैं उससे वो परेशान हो चुका है, और वो अपनी आवाज़ उठा रहा है। तो उसका कत्ल कर देता है यूसुफ। पर रहमान साहब उसका कत्ल करने के बाद वो मुतासिर नहीं होता, वो खुश नहीं होता, एक अलग सी कश्मकश से वो गुजरने लगता है। तो वो क्या चीज़ है जो उसको इतनी परेशान करती है, उस पर आप एक रोशनी डालिए। कत्ल करके कौन खुश होता है भाई? पर हाँ, लेकिन इस देश में हमने इसी पिछले साल ही देखा है, कत्ल करने वालों को हार भी पहनाए जाते हैं। सो एक है, लेकिन आई मीन यू शुड स्पीक ऑन दैट, आई विल स्पीक फ्रॉम दिस साइड कि इस तरफ के रेडिकलाइजेशन का जो रंग है मैं उसको आपके सामने लाना चाहता हूं। वो रंग तो सबको पता है। देखिए, कोकनी समाज की जो एक आइडेंटिटी हुई है पिछले 50 वर्षों में, वो 2 लोगों की वजह से हुई है, और मुझे दोनों पर बहुत सख्त ऑब्जेक्शन है। एक दाऊद इब्राहिम, दूसरा जाकिर नायक। एक ने माफिया में अपना रिकॉर्ड किया, इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज किया खुद को, अब खुदा जाने कहां है। दूसरे ने लोगों को कन्वर्ट करने में अपना रिकॉर्ड किया, अब कहां है? इंडोनेशिया में, शायद मलेशिया कहीं। और इन दोनों का जो इन दोनों से कोकनी आइडेंटिफाई होते हैं, जो काफी ऑब्जेक्शनेबल है। ये एक्सट्रीम बताता है आपको इस समाज का। नया नया जो मजहब जिसके पास आता है वो बहुत एंथुसियास्टिक होता है, व्हाट ही हैज गॉट। जाकिर नायक वाज वन ऑफ देम। इस कहानी में ये जो लड़का है जो मुफ्ती बनता है, उसकी मेमोरी भी वैसे ही है जैसे जाकिर नायक की मेमोरी है। कुछ लोग लाखों में एक आध ऐसे होते हैं जो देख लेते हैं एक बार, उनको हमेशा के लिए याद रह जाता है। जाकिर नायक हैड दैट मेमोरी। इसमें ये जो लड़का है अब्दुल सलाम, अब्दुल अजीज का बेटा जो है, उसकी वो मेमोरी है, एंड जल्दी से वो बहुत बड़ा रिलीजियस धार्मिक स्कॉलर बन जाता है। और ये इलिसिट लव है, वो भी अच्छा होता है। तो ये शादीशुदा औरत है सकीना, जिसकी उम्र 35-36 होती है, और एक दिन एक्सीडेंटली एक कमरे में, जहां गांव में शादी हो रही है, कोकन के बड़े बड़े घर होते हैं, सबको पता होगा, और शादियों में बहुत सारे लोग आते हैं, रहते हैं। तो एक कमरे में सकीना और अब्दुल अजीज वहीं करीब सोते हैं। अब्दुल अजीज बहुत छोटा लड़का है, 15-16 साल का, और इनके दरमियान संबंध हो जाता है, एंड सकीना उससे प्रेग्नेंट हो जाती है, जो 6 साल से प्रेग्नेंट नहीं थी उसकी शादी होने के बाद। और सकीना का जो शौहर है मुजावर हुसैन, वो बंबई एक बार जाता है, वहां उसको पता चलता है एक मस्जिद में कि तबलीग जमात काम करती है। सो वो तबलीग जमात का कंसेप्ट गांव में लेकर आता है। इट्स अ वेरी रिलीजियस काइंड ऑफ पर्सन। लेकिन सकीना और अब्दुल अजीज की जब मोहब्बत शुरू होती है तो वो एक दूसरे के लिए कमिटेड जिंदगी भर के लिए रहते हैं। अब्दुल अजीज उसके साथ मोहब्बत करता है। बेटा पैदा होता है, वो रिलीजियस स्कॉलर बनता है नॉवल में। और बाद में वो अब्दुल अजीज के जो विचार हैं, चूंकि वो काफी सेकुलर लिबरल किस्म का यंग लड़का बनता है, बहुत तालीम हासिल करता है सकीना की मदद से, और गल्फ भी जाता है, मिडल ईस्ट जाता है, वहां पर वो क्रिश्चियंस और जूस से मिलता है, यहूदियों से मिलता है, और उनको भी समझता है।
एक पूरा वर्ल्ड का जो एक पॉलिटिकल नैरेटिव है वो समझता है, और फिर वो वापस आता है और अपने गांव में देखता है कि ये सब कुछ हो रहा है, तो वो सोचता है कि वो इसको चैलेंज करता है कि मैं अपने समाज को का सफरन है, मतलब उसका इस्लामीकरण होने नहीं दूंगा, या तो वो उसके खिलाफ एक तरह से प्रोटेस्ट शुरू करता है। और इसका ये जो बेटा है ये समझता है कि ये धर्म के खिलाफ है, ये काफिर है, ये मुशरिक है, और ऐसे 50-60 अल्फाज हैं उर्दू वालों के पास, जब आपको वो अपने धर्म के खिलाफ समझते हैं तो वो आप पर उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और एक लफ्ज है उसमें मुर्तिद हो जाना, यानी अपने दीन से फिर गया है, और जो मुर्तिद हो जाता है उसका कत्ल यानी उसका मर्डर करना जो है वो आपको परमिसेबल है। तो ये बेटा उसका फतवा देता है कि ये मुर्तिद हो गया, ये आदमी जो अपने दीन से वापस चला गया उसका कत्ल किया जा सकता है, इट्स परमिसेबल इन इस्लाम, तो उसका कत्ल करता है। और खुश इसलिए नहीं होता है क्योंकि कोई भी कत्ल करके खुश नहीं होता है, उसको इस बात का एहसास है, लेकिन नॉवेल में मैंने क्लैरिटी नहीं रखी है, वो रीडर तय करेगा कि उसके साथ और भी कौन से इश्यूज थे जिसकी वजह से वो जब कत्ल करके वापस आता है तो एक अलग तरह के फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है। Shall we take questions? We are being shown this placard that there are just 5 minutes left for this session. So, so this was really enjoyable, really insightful. Thank you, Rahman Bhai. Thank you, Ghulam. And we would like to open this stage for questions. One question. Vivek. So the question I have is, you're talking about the Konkani Muslims and how the Tabligh Jamaat changed the culture. I'm curious to know what was the need within the community that there obviously when someone comes in to change a culture, there's a need within you that you want to adopt that. So what do you see as the reason that सिंपल सी बात है कि when you are an ignorant society, a society which is not educated, whoever gives you a notion that this is your dharma, you accept it. Why this country is accepting political narrative of Hindutva? Think on that. It's because of illiteracy, poverty, ignorance. तो political धर्म अलग होता है. It always comes to dominate, to divide, to rule. Similarly, political Islam है. It comes to dominance, and they have their own particular interpretation of faith, and that has to be challenged. And I think novel is the best way to challenge them. We have time for one more question, actually. One more question. You have another? I think I have a question to ask Rahman Bhai. Why are your books so thick? I was trying to read the manuscript. And really prolific, you know, and writing such huge books, tell us. अरे ये छोटी है. 800 पेज वाली। My other book is 800 pages and that has into third edition. तो sometimes topic तय करता है. मेरा एक नॉवेल है that Penguin is going to publish in June in English. उसका उर्दू टाइटल है खुदा के साये में आंख मिचोली. And the English title that we have so far suggested is On the Other Side. वो बहुत छोटा नॉवेल है. It's 100 pages. So मेरा पहला नॉवेल 90 pages. The book and the characters and the theme ये तय करता है the pages. It's not author. You should never allow author to decide how many pages there will be. It's the story. It's the novel. नॉवेल तय करता है भाई, वरना ये बढ़िया नहीं है. बहुत बहुत शुक्रिया सबका. मैं स्पेशली गोवा आर्ट एंड लिटरेचर फेस्टिवल की पूरी टीम का विवेक भाई के साथ शुक्रिया अदा करना चाहूंगा बिफोर ही कुड से, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि आप उर्दू, मराठी, गुजराती, हिंदी और हमारी दूसरी भाषाएं नॉर्थ ईस्ट की उनकी भाषाओं की किताब को स्पेस दिया जाए. ट्रांसलेशन को तो मिलता ही है जब ट्रांसलेटर, लेकिन ये उर्दू की किताब को जो स्पेस दिया है, मैं समझता हूँ ये पूरी उर्दू दुनिया इसको पसंद करेगी और मोहब्बत से देखेगी. एंड ऑल्सो कोंकणी बनेगी. Thank you so much. Thank you so much, Rahman Bhai. Thank you so much, Sovendra. Thank you so much, Ghulam. Wonderful session. Please keep your seats. We're going to work out the mics. We have a very important book launch coming up.
Big hand again for you guys. Thank you. Okay, we will start the next session in exactly 5 minutes, so please keep your seats if possible, gentlemen.